everyone, I'm Krishna Priya Harsh and welcome back to my channel that's called KPH. Now, if you're thinking कि यार KPH तो हर Wednesday को वीडियो डालती है, then आज अचानक से Monday को कैसे? अरे, because the series is different, no? So welcome to the new series on the channel that's called Talk from Heart. कि देखिए हर Wednesday को I make a video जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीजें मेरी लाइफ में हुई जिन्होंने मुझे बहुत डीपली इम्पैक्ट किया और काश उस वक्त कोई होता जो मुझे हेल्प कर देता so things would have been a little easier. So that's my idea that I make a video on Wednesday and I try to share those emotions with you all. Now, I know कि जब मैं मेरे इमोशंस शेयर करती हूँ तो आप भी शायद वैसे ही किसी एक्सपीरियंस से अंडरगो कर रहे होते हो या आपने कभी किया होता है या शायद किसी को देखा होता है and you feel that you know this story is share worthy. People should know this story because it's quite similar to KPH and it will impact people. अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है दिस सीरीज बेसिकली टू प्रमोट दो स्टोरीज ताकि आप वो स्टोरीज बोले और हम मिलके लोगों को वो स्टोरी सुनाए. नाउ आज का उस सीरीज का पहला एपिसोड है and the person who is the guest for today's series is a person whom I met virtually on Toastmasters. Personally, why I really wanted him to come because every video that I made, yeah, every question that I asked on Instagram, he always had a very in-depth answer and a very emotional answer towards it. And so जब मैंने सोचा कि मैं Talk from Heart बनाऊंगी, so the first person I felt who would be the apt person to come and share his emotions, I felt he would be this guy. So the name of the guy is Harshit Mangwani. He's an electronic and communication engineer and he's right now working in the healthcare domain as a software engineer. Also, he's a content writer on mathematics and statistics. He has his own YouTube channel. और अगर आपको ध्यान है पिछले एपिसोड में मैंने बात किया था 5 ऐसी चीजें जो आप करें टू गेट आउट ऑफ योर डिफिकल्ट जोन. लेट्स अंडरस्टैंड कि हर्षित के कौन से डिफिकल्ट जोन्स थे एंड व्हाट ऑल थिंग्स ही डिड टू गेट आउट ऑफ दैट थिंग एंड कम इनटू अ zen मोड. सो लेट्स गो. हेलो हाय हर्षित. Hi Krishna, thanks for having me. Thank you so much for actually joining and giving us your time. And though you have your exams pending and you have so many other things to do, but you still spared some time for the show. So thank you so much for that. Yeah, you're very welcome actually because this is the first time I'm collaborating with someone on the YouTube. Oh, let me tell you one thing. This is actually the first time I'm also collaborating with somebody. So I think in that case, we can give each other a high five. No, the wrong hand. a little closer to give the high five. A little closer. And now assumption. Let's do this one. Now it's a high five. Bring it a little closer and clap. Okay. Now we are almost done with the high five. So guys, this is the maximum we can do when it comes to virtual high five. And with this, welcome to the show once again, Harshit. And today, we know that the major agenda of today's show is that basically I was speaking in my last video on Wednesday about the 5 things you can do when you're going through a bad memory or a bad situation in your life. That was personally from my side, my perspective of how I came out of it. And I'm so glad that you shared your story, your perspective with me, and you decided that you can come in my video and you would like to share the same with everybody. So first of all, before we start with anything, I honestly want to ask you, Harshit, that in your life, have you ever, first of all, let me ask you, what's your age, Harshit? I'm 22 years and 11 months old as of today. Okay, so we all will assume that you're 23. For instance, you're 23. Now, in 23 years of age, we assume that we have a few highs and few lows in our life. But I want to ask you, Harshit, that have you ever gone through a very low moment in your life because of something that you had to face really deep emotions that impacted your life? Has that something has happened in your life or your life has been chill, pill, happy? Low moments come and go, but the one that I very fondly remember that happened 6 years back from today. And that was when I took the JEE exam for my college entrance. Okay. And उसमें मेरा जो खुद से expectations थे वो मैं fulfill नहीं कर पाया क्योंकि काफी बार मतलब stress times कैसे आते हैं कि जब आपका खुद से या किसी चीज से या किसी और इंसान से expectations fulfill नहीं होते हैं. That's when it happens. तो मेरा तभी हुआ था कि खुद से expectations satisfy नहीं हुए थे. I actually devoted a lot of my teenage years to that exam. और जैसे लोग अपने जो भी चीजें उनको पसंद होती हैं उसके लिए बहुत कुछ sacrifice करते हैं. I also sacrificed some things. और when it didn't come off well,
So that was a huge setback for me कि अभी मैं क्या करूँ. Yes, very true. So Harshit, आपकी बात से मुझे एक चीज तो one thing that I am agreeing with you and I'm sure everybody who's watching would agree also that दुख का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम किसी भी चीज से कोई भी इंसान अगर उससे एक एक्सपेक्टेशन कनेक्ट कर ले and if that expectation doesn't meet then you do go into a pain. So Harshit, I want to ask you this कि फिर आपके साथ क्या हुआ? So you gave your exams and you couldn't clear any of its part or you cleared some of its part. How what happened after you gave the exams? So if there was a contest between me and that exam, it ended in a draw. कि उसका एक phase I cleared very well. Okay. दूसरे phase में I choked. कि when I should have performed, when I should have given my best, that's something I could not do. Okay. उस वजह से जो disappointment था, that got ingrained in me for too long. Okay. So that was JEE mains में आपने बहुत अच्छा किया, but when it came to JEE advanced, things couldn't go the way you thought. Okay. Exactly. तो हर्षित आई वांट टू आस्क यू वन थिंग कि ये आपके ये एक पेनफुल ये एक दुख का मोमेंट है या एक लो पॉइंट है बट फिर हाउ इट बिकेम सो डीप दैट you say that it impacted you very deeply then why do you think that though failing is no doubt a very painful process a person undergoes but do you think that after that also something happened or only that one point was very deeply engraved in you and it impacted you? Sometimes what we think is the source of the problem is actually the trigger. काफी बार उससे दूसरी issues generate होते हैं and that actually compound your misery. क्योंकि जो मेरा response था उस problem को जो anxiety की तरफ वो उतना अच्छा नहीं था, उतना empowered नहीं था, उतना self awareness वाला नहीं था. तो मैंने उसको respond गलत तरीके से किया था. मैंने सोचा कि I actually gone through a lot of pain, so now I deserve to be happy. तो मैंने क्या किया कि गलत तरीके लिए थे फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसे कि टीवी सीरीज बिंज वॉच करना या एंडलेसली सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना या टाइम वेस्ट करना या कुछ भी ऐसा करना जिसका फ्यूचर में कोई यूज नहीं है. ओके. उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो पेन है वो एक्यूमुलेट होता है, जो गिल्ट है वो एक्यूमुलेट होगा. क्यों? क्योंकि समवेयर योर कॉन्शियसनेस नोज कि यू आर नॉट गोइंग इन एनी डायरेक्शन, द सेंटर ऑफ योर बीइंग इज नॉट फुलफिल्ड. बट अगर आप उसको नहीं सुनते हो एंड यू डोंट लाइक योर ओन कंपनी तो आप सोचते हो कि जो चल रहा है वो चलने दो ना, क्योंकि जो सरफेस लेवल पे आपको परेशान नहीं करी ना वो चीजें भी. Why? Because you have found some ways to escape that. मोबाइल, टीवी सीरीज जो भी है, ठीक है, जो भी लोग करते हैं अपने पेन को हटाने के लिए, तो वो आपके जो इश्यूज हैं, मेंटल इश्यूज, उसको सरफेस पे आने से रोक रहे हैं एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू एड्रेस देम. तो प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग जो भी है, हिडन सफरिंग थी जिसको मैं एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, उस वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ते गए थे ओवर द इयर्स. For the first 3 years of college life, that's exactly. और एक और पॉइंट ये भी था उस टाइम पे कि when you are not feeling good about yourself, you don't have anything good to give to others. So those who actually cared about me, मैं उनको भी अच्छे से उनका जो केयर और अफेक्शन है वो उतना अच्छे से रेसिप्रोकेट नहीं किया था. Okay. मैं कहूँगा कि हाँ, I made a lot of good friends, but जितना वो मेरी तरफ अच्छे से अफेक्शन दिखाते थे या वार्मथ देते थे उतना मैं नहीं था उनकी तरफ, मेरी तरफ से नहीं था. All right. तो हर्षित ये मेरे आपसे एक बहुत ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ये जो दुख होता है, पेन होता है, ये हम सबकी लाइफ में आता ही है बट यू नो देयर इज अ सर्टेन पॉइंट जब तक ये मन उस दुख को बर्दाश्त करता है या उस डिस्कम्फर्ट को बर्दाश्त करता है बट आफ्टर अ पॉइंट यू फील लाइक enough is enough yaar, I just want to get out of this person, I don't want to be this person anymore. So I want to ask you Harshit, when you realized कि यार अब बस यार I'm pissed off of living this life, I want to get out of it. It happened on a certain day, a certain occasion or randomly things moved and you realized कि अब बस अब निकलना है इससे? ऐसा कोई मोमेंट नहीं था कि जब ऊपर से एपिफेनी आ गई कि हाँ अभी नाउ आई वांट टू चेंज. ऐसा कुछ नहीं था. सिग्नल्स मिलते थे लोगों से कि नाउ दे आर नॉट एंजॉयिंग माय कंपनी बिकॉज आई वाज नॉट एंजॉयिंग माय कंपनी. मैंने देखा कि सिंस आई एम नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग टू द टेबल दे वर पार्टिंग वेज फ्रॉम मी. क्योंकि यू हैव टू ऐड सम वैल्यूज. ऐसा नहीं कहूंगा कि मेरे सारे फ्रेंड्स दे वर लुकिंग फॉर वैल्यूज फ्रॉम मी, पर एक जो रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट होता है ना वो आपके मन में आता है सामने वाले के लिए व्हेन दे आर मोटिवेटेड, व्हेन दे आर ड्रिवन. वो रिस्पेक्ट मुझे दूसरों में नहीं दिखता था अपने लिए. ओके. तो मुझे लगता था कि सेल्फ वर्थ का कुछ करना पड़ेगा इसमें. मतलब तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ 3 साल से, कुछ नहीं. लेकिन now I have to change my ways. Okay. So for you that accumulation of thoughts certainly started giving you that idea कि यार अब बस यार I need to get out of this person who I am becoming. What was your approach towards getting out of that person?
तो एक चीज मैं जो अनकॉन्शियसली या मतलब ऐसे मोटिवेटेड होके या कॉन्शियसली नहीं कर रहा था वो ये थी कि आई हैड बीन वर्किंग ऑन माय वोकैबुलरी फॉर अ ईयर, 1 साल से। ओके। तो मुझे लगा कि अभी वर्ड्स पता होना अलग बात है इंग्लिश के, लेकिन उसको एक अच्छे कम्युनिकेशन में बदलना, दैट्स अ यस। डिफरेंट थिंग। यस। So why don't I channelize these words or this vocabulary power to be a better communicator? तो हम्म। मैंने सोचा कि कैसे इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन करते हैं, बिकॉज द प्लेसमेंट सेशंस वर अराउंड द कॉर्नर। तो मैंने हम्म। सोचा चलो इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, हु नोज इट माइट कम ऑफ वेल दिस टाइम, हो सकता है इस हम्म। बार कुछ अच्छा हो जाए। तो मैंने अपने प्रिपरेशन को ऑप्टिमाइज किया क्योंकि मेरे पास ज्यादा दिन भी नहीं थे। ओके। और होल ऑफ दैट प्रिपरेशन, होल ऑफ दैट एंटिसिपेशन दैट केम ऑफ वेल ऑन वन सर्टेन डे। और उस दिन मैंने सोचा कि हाँ, नाउ आई हैव टेस्टेड सक्सेस आफ्टर एजेस, आफ्टर एन इटर्निटी, कि हाँ कभी तो कुछ अच्छा हुआ ना, मतलब 3। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ यार, अभी यहाँ से मे बी आई कैन स्टार्ट लुकिंग अपवर्ड्स। वो एक ओके। बहुत अच्छा चेंज था, क्योंकि 3 साल तक इंजीनियर्स क्या करते हैं, जॉब्स का सोचते हैं ना ऑनेस्टली। तो वो जो समिट वाला पॉइंट आता है ना, वो आ गया था काफी टाइम पे, और मुझे लगा कि हाँ यार, लोग अभी दे आर टॉकिंग अबाउट मी। हॉस्पिटल से मैंने देखा एक दो बार कि मुझे लगता था कि मुझे कोई जानता नहीं है, पर दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मी। तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये भी एक तरह का एडिक्शन है कि व्हेन यू आर ऑन द वे अप तो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, और व्हाट्स नॉट टू लव अबाउट यस। दैट। ओके। फिर तो अब मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर्स इज कि बिफोर एक्ट, सो ऑल दोस पीपल आर गिविंग यू एडवाइस ऑन इंस्टेंट, यू शुड टेक ऑल दोस एडवाइस, लेकिन पहले उस पे इम्प्लीमेंट करने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने सारे इमोशंस को फील करो, एंड यू आर इन दैट प्रोसेस, राइट? वो बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि काफी बार जो लोगों की एडवाइसेस, अगर आपको लगता है कि यार लोग एडवाइस भी कर रहे हैं, मेरे वेल विशर्स हैं और मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है वो जो कह रहे हैं, तो उसका गिल्ट एटलीस्ट फील नहीं करना। यू हैव टू एक्नॉलेज योर ओन प्रॉब्लम कि हाँ यार, हो सकता है कि इस वाओ। सिचुएशन में मतलब नॉर्मल होता हो किसी की एडवाइस ना समझ पाना, इट्स ओके। तो ओके। अपनी तरफ काइंड होना, दैट्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ केयर, दैट्स आल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, अब हम लोग अपनी तरफ काइंड हो गए। नाउ विल यू सजेस्ट पीपल कि जो भी लोगों का छोटा छोटा अब उन लोगों ने आइडियाज दिए, लाइक गो परस्यू योर हॉबी या डू दोस थिंग्स, यू फील कि वो करना इतना जरूरी नहीं है, या डू यू थिंक कि वंस यू कम ऑन एन इक्विलिब्रियम ये चीजें करना भी जरूरी है? ये चीजें करना भी जरूरी है। यू हैव टू बी योरसेल्फ एट सम पॉइंट कि हाँ या। यार, अब तो कर लेते हैं ना। हम्म। तो वो भी एक तरह का रिलैक्सेशन है, वो भी एक तरह का डीकम्प्रेस है जो आपको चाहिए होता है वंस इन अ वाइल। या। स्ट्रेसफुल टाइम्स में तो और भी ज्यादा, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको उस स्टेज पे तो आना पड़ेगा ना, व्हेन यू कैन कॉम्प्रिहेंड द एडवाइसेस ऑफ अदर्स। Yes, very true. Very true. Okay. So till now I'm getting 2 points from you. First point is कि पहले तो whatever people give their suggestions, before that it's important कि आप एक personal space में आए जहाँ पे you are ready to take somebody's advice. You are okay with yourself, kind to yourself and good to yourself. Number two, once that you have reached that certain benchmark, now the second thing has to be कि you are implementing those small things, because however small they look, they are impactful because they connect you to who you are, right? सेल्फ एस्टीम अपलिफ्टमेंट की मैंने बात की थी, और उसके लिए मैं एटलीस्ट मैंने जो किया था कि खुद का रिडेम्पशन। रिडेम्पशन कहाँ से आएगा कि जैसे ट्रिगरिंग पॉइंट था कि मेरा एक एग्जाम मैसअप हो गया था। तो हाँ। मैंने फॉर द लास्ट वन ईयर और सो मैं अपने इंग्लिश पे काम कर रहा था उसको। तो मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का ही एग्जाम दिया था उसी साल दिसंबर में, ऑलमोस्ट 2 years बैक। ओके। तो आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर 6 months, जो मेरा इंटेंडेड रिजल्ट था वो मुझे मिला उस एग्जाम में। तो मुझे लगा कि हाँ, मे बी आई स्टिल हैव इट इन मी, कि अभी हो सकता है दैट वाज वन ऑफ जो एग्जाम उस ओके। टाइम खराब हुआ था, दैट वाज मे बी रेयर। हो या। सकता है कि केपेबल ऑफ स्टिल क्लियरिंग एग्जाम्स। ठीक है, वो ओके। हुआ, उससे थोड़ा बिलीफ और ऊपर आता है। हम्म। तीसरा आता है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन काफी ठीक है। हर बार जरूरी नहीं है कि आप एक्सटर्नल वॉइसेस की सुनो, कि काफी बार आप अपने आप को भी यू कैन पैट योरसेल्फ ऑन द बैक, बट काफी बार यू नीड एक्सटर्नल वैलिडेशन। उसके लिए आई टुक अप द फ्रीलांसिंग जॉब ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स ऑनलाइन। तो उसमें ठीक है, और आई यूज्ड टू टीच मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, ओके। मैं ये 4 सब्जेक्ट्स लेता था स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इनमें मेरे को इंटरेस्ट भी था। और ठीक है, अब वहां पे मेरे को अपने वही बच्चे दिखे जो कुछ साल मतलब उसी फेज में दिखे जिसमें कुछ साल पहले मैं था। मुझे लगता था कि हाँ यार, मैं अपनी नजरों में थोड़ा सा इनोसेंट हूँ या थोड़ा कंफ्यूज हूँ, पर ये लोग वो भी हैं जिन्होंने और भी बहुत सारी चीजें नहीं देखी है जो मैंने देखी है। मे बी माई एक्सपीरियंस कैन हेल्प देम। तो जब आप ओके। उनको एक्सपीरियंस देते हो अपना, दे एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू, तो दैट्स द वैलिडेशन यू नीड, और दैट्स द ओके। वैलिडेशन दैट आई नीडेड एट दैट टाइम, कि हाँ ओके। यार, आई हैव समथिंग टू फील बेटर अबाउट माई सेल्फ। Very interesting. All right. So third is that
try to go and help people and try to be good at the things you are, because जितना भी ये fast sound करे, but एक certain point के लिए external validation do makes us feel happy and do makes us feel a little worthy of who we are. Very, very interesting and so honest of you to say that, Harshit. Very, very nice point, Harshit. Do you have any other things that you did while you were getting out of these pains? स्पीकिंग ऑन द लाइंस ऑफ इंटरनेट, मैं वही कह रहा था कि जो इनके एआई एल्गोरिथम्स होते हैं, दे वांट यू टू हुक डाउन टू दोस प्लेटफॉर्म्स, टू गेट टू बी हुक डाउन टू दोस प्लेटफॉर्म्स. तो मैं कहूंगा कि व्हाई डोंट यू सेकंड गेस देम एंड लेवरेज दिस एल्गोरिथम इन योर फेवर. ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको जो चीजें देखनी है, जिन चीजों में आप रहना चाहते हो, आप उसमें उसकी तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाओ, तो ये उनके जो एल्गोरिथम्स हैं ये नोट करेंगे ना कि आप किसको कितना अटेंशन दे रहे हो, तो अगली बार उनके रिकमेंडेशन में वही चीजें होंगी. तो अगर आपके जो फीड है, सोशल मीडिया फीड है, उसमें वो चीजें जो आपको बेनिफिट नहीं देती, जैसे कि टैबलॉइड या फेक न्यूज है, या क्लिकबेटी थंबनेल्स वाले यूट्यूब वीडियोस हैं, या कुछ भी है, फेक यूटोपिया क्रिएट करने वाली पिक्चर्स हैं, परफेक्ट पिक्चर्स जो जिनसे आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, मे बी इट्स टाइम टू से नो टू देम. और मे बी इनका जो इन्फ्लुएंस है उसको रिड्यूस करने का टाइम है. कि हाँ, आप ऑब्जेक्टिवली किसी चीज को कट ऑफ नहीं कर सकते, अगर काफी बार कम कर सकते हो इनका ड्यूरेशन. काफी चीजों को आप यू कैन से नॉट इंटरेस्टेड. यूट्यूब पे तो ऑप्शन है नॉट इंटरेस्टेड, और उसके बाद वो आपको कुछ नए रिकमेंडेशंस देगा. तब आप सोच सकते हो कि किसको अपना टाइम देना है. आप अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट को सर्च कर सकते हो कि हाँ, इस चीज से मेरा बेनिफिट होगा. देखो, सोशल मीडिया के एस्पेक्ट्स एंटरटेनमेंट वाले भी होते हैं, लर्निंग वाले भी होते हैं. दोनों का बैलेंस रखना चाहो, या प्योरली लर्निंग या प्योर एंटरटेनमेंट, वो आपके ऊपर है. मैं कहूंगा दोनों का बैलेंस रख लो. ठीक है, आपके अगर कुछ गिल्टी प्लेजर्स हैं जो वो आप चाहो तो यूट्यूब पे इनकॉग्निटो में देख सकते हो, ताकि वो आपको रेगुलर बेसिस में आपके फीड में ना आए. बट अगर आप इन केस आपको सोल पर्पस आपका वही है लर्निंग का, तब तो दिस विल वर्क. ठीक है. Okay. Randomly watching whatever is coming, if we try to structure it, और जो चीजें unnecessarily हमको negativity दे रही है उस पे not interested लगाकर, और वो चीजें जो हम देखना चाहते हैं अगर उसको देखेंगे, तो आपका माइंड कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली अच्छी चीजें सोचेगा और आपको अच्छी जगह लीड करेगा. राइट? वो जो लर्निंग की हैप्पी जर्नी है ना, उस पर भी माइंड को रहना पसंद है. ठीक है, उसको एडिक्शन भी पसंद है, पर उसको एफर्ट्स देके, देखो लर्निंग वीडियोस में आपको एफर्ट्स भी देने पड़ेंगे, अटेंशन देना पड़ेगा. ज्यादा ब्रेन पावर लगता है कंपैरेटिवली प्रैंक वीडियोस देखने से. और वो भी एडिक्टिव है इन इट्स ओन वे. ठीक है, यू डोंट वंस यू स्टार्ट यू डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट. और बेस्ट पार्ट की आपके लिए बेनिफिशियल है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. कि एक बार माइंड उस डायरेक्शन में चलने लग जाए तो थिंग्स ऑन देयर ओन स्टार्ट्स गोइंग इन अ वेरी नाइस डायरेक्शन. That's very interesting, Harshit, कि आपने अपने आप पे वर्क करके, and when you tried to come out of difficult situations, you actually worked on almost all the aspects, coming your own personal internal aspects, external things that are happening, external validations, external sources. So आपने basically, I think that what I am understanding from your way of coming out of difficult situation is कि हम we as humans are controlled by various things. Some things are inside and some sources are outside. तो अगर आप सच में किसी दुख के situation से निकलना चाहते हैं, या anything that is impacting you continuously, it's important that change happens within also and change happens externally also. Either it's your social media, the kind of people you're hanging out with, the things you're reading, everything has to be changed if you really want to bring a change in your life. Very, very interesting. On top of that, मैं आपके पुराने वीडियो पे थोड़ा रिफ्लेक्ट करूंगा, जो आपका लास्ट था 5 steps to get out of the state of discomfort जो भी था. तो ये उसमें एक पॉइंट आपकी हेल्प करता है राइटिंग. आपने कहा था जर्नलिंग कर सकते हैं हम. जर्नलिंग से क्या होगा कि the piece of paper is not judging you for anything. ठीक है, वो एक नॉन लिविंग सोर्स है, another non living friend that you can make. काफी बार when you start treating it as your friend, living friend, तो जैसे आप दोस्तों से गॉसिपिंग करते समय या एक्सपीरियंसेस शेयर करते समय थोड़ा क्रिएटिव हो जाते हो, थोड़े से मेटाफर्स यूज करते हो सकता है कि वो क्रिएटिविटी टाइम के साथ राइटिंग में भी दिखे. एंड हु नोज, यू माइट ब्रिंग आउट द हिडन राइटर इनसाइड यू. ये तो उसका बाय प्रोडक्ट हुआ. बट जर्नलिंग से क्या होगा कि आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा, और हो सकता है कि अभी से कुछ महीने बाद या कुछ सालों बाद जब आप उस फेज से निकल सकते हो, तो वो पढ़ने में अच्छा लगता है. इट्स अ वेरी सूदिंग एक्सपीरियंस. We have come out of it, and thankfully we are not in that state anymore. Yes, we actually learn from it. Very interesting. Yeah, I mean, I also totally take up your point कि journaling is something that has millions of benefits. I mean, I can make an entirely different video talking about journaling, because it gives you so much of clarity, structures your mind, gives you such great amount of reflection of where things are happening, and most importantly,
जब आप बहुत दुखी हो ना, एंड एज यू टोल्ड कि कई बार अपने फ्रेंड्स को भी हम जब बताते हैं तो वो हमको एक बहुत ही अलग जोन से जवाब देते हैं, और वो जवाब हमको इरिटेट करता है उस वक्त पे कि यार वेट मैन, आई एम सो सैड, और डू यू थिंक कि द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ द सैडनेस इज गोइंग फॉर अ वॉक? सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ वी वांट समबडी टू लिसन, राइटिंग अप जस्ट मेक्स यू फील कि कहीं तो वेंट आउट हुआ ना, कहीं तो निकला वो एनर्जी। सो एक डेफिनेटली। ये डिफरेंस भी था कि सोचते समय हमारा मतलब रैशनैलिटी का लेवल अलग होता है, बोलते समय अलग होता है, पर लिखते समय काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब इट हैज बीन फाउंड कि ओके, लिखते समय यू आर द मोस्ट सेंसिबल वर्जन ऑफ योरसेल्फ। यू आर द मोस्ट फ्लेक्सिबल वर्जन, सेंसिबल। sensible, okay, you're the most sensible version of हम yourself. थोड़े Wow. कॉन्शियस भी होते हैं कि हम लिख क्या रहे हैं, क्योंकि लेट्स से आपके Oh. दिमाग में कुछ कर्स या फिर अब्यूजिंग वर्ड्स आ रहे हैं, वो आप लिखोगे नहीं। अरे हाँ, ये बात तो सही है। ठीक है, या फिर आपको लगता है कि आई रिटेलिएट टू समवन बाय एक्टिंग बैड टुवर्ड्स देम, तो वो भी आपका शायद थोड़ा यू माइट होल्ड योरसेल्फ बैक कि ये पेपर पे नहीं लिखते। वेरी ट्रू। तो हर्षित, इसका मतलब आप, मैं इसके, मुझे एक बहुत अच्छा हैक मिला आज आपसे कि अगर आप कभी ऐसे फील कर रहे हैं ना हम लोग कि यार आज आई फील वेरी डम ऑफ माई सेल्फ, कि आज मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा, जस्ट गो एंड राइट एंड देन यू विल एटलीस्ट फील अ लिटिल सेंसिबल अबाउट योरसेल्फ कि नहीं ऐसा भी नहीं है, आई हैव रिटन एंड नाउ आई फील अ लिटिल स्ट्रक्चर्ड एंड हैप्पी इन माय लाइफ, which is interesting. Okay, Harshit, I mean, I'm really enjoying this conversation. एक आखिरी question मुझे जो आपसे ये पूछना है कि from all the memories, the bad memories that you have gone through, or things that have impacted your mental health or your personal emotions, I want to ask you one thing कि क्या आपको, पहली बात तो आपको लगता है कि जो bad memories है ये सारी चीजें करने से एब्सोल्युटली आपकी सिस्टम से एलिमिनेट हो जाती है? फर्स्ट क्वेश्चन। एंड नंबर टू, क्या आपको लगता है कि ये बैड मेमोरीज नहीं आती तो सही रहता है ना, लाइफ वुड हैव बीन बेटर? व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स बेसिकली बैड मेमोरीज? तो ऐसा है कि लेट्स नॉट एंटेगनाइज द पेन सो मच। ठीक है, पेन होना भी इट्स ओके, और आपके अंदर वो रह जाता है। मेरा आंसर है कि इट विल स्टे विथ यू। ठीक है, मैं तो इतना फॉन्डली बता भी पा। एडिशनली मैंने एक स्पिरिचुअल टूर फिल्म में देखा था अराउंड 1 year अगो। मैंने देखा था कि द स्पीकर सेड वी आर अ वे फॉर द यूनिवर्स और द कॉस्मोस टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ। ठीक है, वो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिवर्स के हैं या कॉस्मोस के हैं वही काफी सारे ह्यूमंस में भी होते हैं। एक एग्जांपल तो मैं ट्रिवियल सा एग्जांपल ये दूंगा कि यूनिवर्स भी टाइम के साथ फॉरवर्ड मूव किया है, इंसान भी फॉरवर्ड मूव करना ही पसंद करते हैं। दूसरा ये कि मतलब फॉरवर्ड मूव नहीं करते ना तो आप यू विल फील अनस्टेबल फ्रॉम द इनसाइड। और दूसरा ये कि यूनिवर्स और द कॉस्मोस जो भी है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टर्म टू यूज, बट most of the system outside is comprising of dark matters apart from galaxies, bright galaxies or stars. Dark matter भी काफी सारा, maybe it's forming the majority of the universe. Humans भी अपने happy moments में thrive तो करते हैं, but it is these dark moments या फिर जो मुसीबत का टाइम है, जो dark phases हैं, when you hit the rock bottom, these are the moments that make us. क्योंकि उस टाइम हमारा learning जो है वो maximize होता है कि you will realize some things when you are hurting the most. Yeah, मतलब at then you're telling कि थोड़ा तो like I was also telling my video कि this is what people think, no, that if you give a solution you're like अरे बस ये करके तो मैं 10 दिन बाद I'm going to be happy, but people don't understand कि यार it's a thing that has impacted you for such a long time, you have to give it a little bit of time. How much ever you think, it can't be like after 6 months things are like oh my god I went off, no? Yeah, so after 6 months we feel कि things would be all right. So yeah, I think that Harshit, you want to add something else, or else for me, I personally really enjoyed this conversation. I would now leave the last say if you want to say something, and then we can end it. ओके, तो मैं बीच में वीडियोस के बीच में मैंने कुछ चीजें सीखने की भी बात की थी ना, तो अगर किसी को लगता है कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ टू लर्न इट, तो मैंने बताया कि कुछ चीजें मैंने 1 साल में सीखी, कुछ चीजें मुझे पता भी नहीं चला कि मैं सीख रहा हूँ। एक दिन रियलाइज हुआ कि हाँ, आई बिकम बेटर एट इट। हाँ, तो टाइम बहुत पावरफुल है, वो आपको हील भी कर सकता है, वो आपको वो चीजें लर्न भी करवा सकता है जिनके लिए आपको उम्मीद भी नहीं थी कि आप कभी सीख पाओगे। काफी बार आपके अंदर वो स्किल्स बहुत लेट डेवलप होती हैं, पर हो जाती हैं, तो वो बिलीव को रखना है। Very true. I would like to say. Okay, so thank you so much, Harshit, for first of all joining us in this amazing conversation, for answering to the Instagram question that I asked, for agreeing that even after having such a busy schedule where you have to work, you have to prepare for your exams, you still felt that you should come out and share the story because people out there would it would help people out there. And last of all, I really want to say that from all the things that today I
we were having the conversation. One of my biggest learning is that, and I would want that everybody takes it, that there are two ways, and the biggest ways of coming out of any pain is first, obviously, acknowledge it. So if it's a pain of heartbreak, it's a pain of failing in an exam, it's a pain of any of your close friend leaving you, or any kind of pain that I am unable to contemplate right now, but it is impacting your heart and your soul. First is acknowledging that it's a pain, and number two, make every efforts and give that time, a little bit of time, and I'm sure कि वो चाहे छोटा effort हो, बड़ा effort हो, जहाँ पर भी हो, things would one day go in a direction where your heart would say, I'm proud of myself that I took all those steps. With this, I think that we'll end this conversation. Thank you so much, Harshit, for joining in. And I want one more thing, that Harshit himself also, as I told in the beginning of the video also, that Harshit himself has his own YouTube channel by his own name, Harshit Mangwani. Importantly, that he teaches cool chemistry. So if anybody of you really wants to learn great concepts of chemistry, you can go and subscribe it. Yes. I wanted to say about this channel that you are running, क्योंकि मुझे ऐसा लगा वीडियोस देख के कि you are not touching the topic superficially. You are coming among the people in the crowd, और you are giving the ideas that are closer to the ground reality. ये मुझे आपके past videos में देख के लगा कि you are one of us. You are not putting yourself on a higher pedestal. तो वो जो ह्यूमिलिटी है, वो जो मतलब मिक्सअप होने की क्वालिटी है, वो मुझे लगता है कि हाँ, maybe this channel can help people, those who are going through tough moments. Okay, thank you so much, Harshit. I think that one of my biggest reason of making the channel was also because for a huge amount of time in my life, I have been so confused, so sad, so unnecessarily overemphasizing on things that are not required. And I really felt that if my experience somewhere out there can help even one person, even this much, then I think that I will feel that all those pains were worth living that I lived. So, and I think that that is also one of your purpose, that you came here and you shared all those I'm ideas with actually a us. beneficiary of this channel. I can say. And I am a beneficiary of listening to you, because today I learned so many cool hacks. I know that Thank when you. I'm feeling dumb, I'm going to go and write and look more sensible. I know that I have to filter my YouTube account right now and really watch things that are something that will help me to grow. And most importantly, I'm going to acknowledge even when I know that, you know, it's painful, but you have to. With this, yeah, once again, thank you so much for watching in, joining us. I would again like to say you all कि ये जो दुख है, ये सबकी जिंदगी में है, इम्पोर्टेंट है हम इससे निकले. अगले वेडनेसडे हम लोग किसी ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे. और अगर आपको लगता है कि यार मेरे लाइफ में ऐसा एक सिचुएशन आया है, एंड आई वुड लव टू शेयर इट विद पीपल, एंड आई वुड लव दैट पीपल वॉच इट एंड गेट learn something from it, then feel free, write it to me on my email, on my Instagram account, or on YouTube if you want to, and I would love to have you in the next episode of Talk from Heart. Till then, thank you so much for watching. Bye bye everybody. Bye bye Harshit, thank you so much for joining me. Feels like it's been too long. I could never let